Bismillahirrahmanirrahim. Corporate finance students. Well, today we'll start. We'll discuss a new topic, which is that of hybrid financing. In uh, this lecture is divided into different parts. So, part one of this lecture will cover the two instruments which are of hybrid nature. One is preferred stock, and the other is leasing. So, let's move on with the presentation. Preferred stock. Preferred stock is a hybrid. It is similar to bonds in some respect and to common stock in other ways. ठीक है, तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसके अंदर डेट और एक्विटी दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं. तो प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर भी ये दोनों फीचर्स जो हैं दे आर pretty much there. Now, preferred stock has a par or liquidating value, often either $25 or $100. The dividend is stated as either a percentage of par or so many dollars per share or both ways. तो जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसका वन ऑफ द फीचर ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक इज दैट देयर इज प्री डिटरमिन्ड डिविडेंड, प्री डिसाइडेड डिविडेंड. और वो डिविडेंड जो है वो इधर इट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पार वैल्यू, कि जो भी डिविडेंड की पार वैल्यू है उसके इतने परसेंट आपको इस पे प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड मिलेगा. या फिर वो पर डॉलर डिक्लेयर पहले से डिक्लेयर्ड होता है कि हर प्रेफर्ड स्टॉक के अगेंस्ट यू विल गेट अ डिविडेंड ऑफ $2 per share or $3 per share. So it can be either or it can be both ways. If the preferred dividend is not earned, the company does not have to pay it. ठीक है, तो नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वो ये कि whenever there will be profit, and if the company declare dividend, preferred stockholders will be given preference in case of dividend. लेकिन ये कि अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो उस सूरत में प्रेफर्ड स्टॉक या कॉमन स्टॉक दोनों को डिविडेंड नहीं दिया जाता. However, most profit issues are cumulative, meaning that the cumulative total of all unpaid preferred dividends must be paid before dividend can be paid on the common stock. अच्छा, एक इसकी जो आप कह सकते हैं इसकी एक टाइप है प्रेफर्ड स्टॉक की, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक. उसका if it is cumulative preferred stock, then the feature of that cumulative preferred stock is that even if the company do not pay dividend in 1 year, if when in the next year if the company will declare dividend, then this cumulative preferred stockholders will get dividend for 2 years. ठीक है, इनका डिविडेंड जो जमा होता रहता है. तो अगर एक साल में कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो अगले साल में, अगर अगले साल भी नहीं देती तो फिर तीसरे साल में जाके उसको तीनों सालों का कंबाइंड डिविडेंड पे किया जाएगा if it is cumulative preferred stock. Unpaid preferred dividends are called arrearages. Many preferred stock accrue arrearages for only a limited number of years, say 3 years, meaning that the cumulative feature ceases after 3 years. However, the dividend in arrears continue in force until they are paid. अच्छा, तो ये एक और इसमें there is one more feature of this cumulative preferred stock कि अगर आपको डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती तो 3 साल तक का आपका डिविडेंड जो है वो जमा हो सकता है, जिसको वो एरियरेजेस कह रहे हैं. तो 3 साल से ज्यादा का जो है वो अगर लेट से फोर्थ ईयर में जाके अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो यू विल गेट डिविडेंड फॉर ओनली 3 इयर्स, आपको 4 साल का डिविडेंड मिलेगा. तो 3 साल तक ये इसमें क्यूमुलेटिव जो है दैट फीचर इज एप्लीकेबल. मोर देन 3 ईयर इट इज नॉट एप्लीकेबल. One of the feature of preferred stock is that normally preferred stock has no voting rights. Yani preferred stockholders do not participate in the voting process. Although non-payment of preferred dividend will not bankrupt a company, corporation issue preferred with every intention of paying the dividend. ठीक है, तो यही इसमें डिफरेंस है डेट में और प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर. कि डेट के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी go into bankruptcy, whereas in case of preferred dividend, if the company do not make any payment for the dividend, the company will not be bankrupt in that case. लेकिन ये है कि not paying dividend is to like if the company has issued preferred stock और वो उस पर dividend नहीं दे रही तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है. It will make problems like passing the dividend makes it difficult. Passing the dividend makes it difficult to raise capital by selling bonds and virtually impossible to sell more preferred or common stock.
ठीक है, तो अगर आप डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं तो देन योर इमेज इन द मार्केट इज टार्निश्ड, इट इज डैमेज्ड, और उसका इफेक्ट ये आएगा कि आपको यू विल नॉट बी एबल टू सेल बॉन्ड्स, एंड डिफिकल्टी होगी आपको बॉन्ड्स सेल करने में, whereas you will not be able to sell more preferred stock or common stock. People will not be interested in purchasing those if you are not paying the dividend. Passing the dividend का मतलब ये है कि आप dividend pay नहीं कर रहे हैं. Your company is not making payment or paying the dividend. Okay, for investors, preferred stock is riskier than bonds for two reasons. Number one, preferred stockholders' claims are subordinated to those of bondholders in the event of liquidation. ठीक है, अगर कंपनी bankrupt हो जाएगी तो in case of that, preference will be given to the bondholders. ठीक है, उनको पैसा पहले वापस रिटर्न किया जाएगा. अगर कुछ पैसा बच गया तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पैसा वापस मिलेगा. सो इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी, preferred stock bond holders, they get preference over the preferred stockholders. अच्छा, दूसरा reason why it is more riskier for the investors is bond holders are more likely to continue receiving income during hard times than are preferred stockholders. ठीक है ना, बॉन्ड होल्डर्स को तो आपने इट्स अ लोन, तो लोन की स्टॉप पेमेंट तो आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की आप, अगर आपकी कंपनी जो है वो मुश्किलात का शिकार है तो आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की पेमेंट रोक सकते हैं. ऑल्दो इट इज़ नॉट अ गुड practice, but still you can, like we discussed earlier, okay, you if it is cumulative तो 3 साल तक आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं. नॉन क्यूमुलेटिव के केस में जब आप डिविडेंड पे नहीं करेंगे उस साल का डिविडेंड उनका लॉस्ट हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट, these are the two reasons for which the investors they prefer, uh, the preferred stockholder is considered riskier than bonds. Okay, so what are the advantages of preferred stock? मेजर एडवांटेज फ्रॉम द इश्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम इश्यूअर के जो जिस कंपनी ने प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडवांटेजेस देख रहे हैं. नंबर वन इज, इन कंट्रास्ट टू बॉन्ड्स, द ऑब्लिगेशन टू पे प्रेफर्ड डिविडेंड इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल एंड पासिंग अ प्रेफर्ड डिविडेंड कैन नॉट फोर्स अ फर्म इनटू बैंक्रप्सी. तो एक तो इसका ये एडवांटेज हो गया कि आप अगर बॉन्ड के ऊपर पेमेंट नहीं करते हैं तो वो तो आपके ऊपर बॉन्ड होल्डर्स कैन सू एंड देन द कंपनी कैन गो इनटू बैंक्रप्सी. लेकिन अगर आप प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं पे करते हैं या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो आपको सू नहीं कर सकते, कंपनी को बैंक्रप्ट, दे कैन नॉट फोर्स द कंपनी टू बैंक्रप्सी. अच्छा, सेकेंड एडवांटेज इज बाय इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक द फर्म अवॉइड्स द डाइल्यूशन ऑफ कॉमन इक्विटी दैट occurs when कॉमन स्टॉक इज सोल्ड. डाइल्यूशन ऑफ कॉमन इक्विटी का मतलब ये है कि आपकी एक सर्टेन पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग है, उसके हिसाब से आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको रन कर रहे हैं कंपनी को. जब आप नए शेयर इशू करते हैं तो वो पैटर्न जो है डिस्टर्ब हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है. तो लेकिन अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर रहे हैं तो प्रेफर्ड स्टॉक के इशू करने से वो आपका जो स्टॉक शेयर होल्डर का पैटर्न है वो डिस्टर्ब नहीं होता. सो दैट इज द सेकेंड एडवांटेज, दैट the by issuing the preferred stock, the company avoids the dilution of common equity. Actually, third is because preferred stock sometimes has no maturity, and because preferred sinking fund payments, if present, are typically spread over a long period, preferred issues reduce the cash flow drain from repayments of principal that occurs when debt issues with debt issues. ठीक है, तो आपका कैश फ्लो भी इस केस के अंदर प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर यू डोंट हैव टू रीपे द अमाउंट. ठीक है, आपने उसका पैसा वापस नहीं करना प्रेफर्ड स्टॉक का, तो इसलिए वो आपकी कैश फ्लोज जो है ना वो भी बेहतर मैनेज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स. ठीक हो गया, तो ये दीज आर द थ्री मेजर एडवांटेजेस फ्रॉम द इश्यूअर स्टैंड पॉइंट. नंबर वन कि जनाब आपका इफ द कंपनी इशुइंग कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड तो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट नहीं होगी. नंबर सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब नहीं होती बाय द इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स. और नंबर तीन इसका एडवांटेज ये है कि आपके कैश फ्लोज जो हैं दे आर better managed if the company has issued preferred stock compared to if the company has issued the bonds.
Disadvantages, there are two major disadvantages. Number one, preferred stock dividends are not deductible to the issuer. Hence, after-tax cost of preferred is typically higher than the after-tax cost of debt. अच्छा, जो आप लोन लेते हैं और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो आपका टैक्स डिडक्टेबल है, लेकिन यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो आप डिविडेंड दे रहे हैं दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल. सो बेसिकली यू कैन से कि वन डिसएडवांटेज इज कि इट हैज नो टैक्स एडवांटेज. प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर वो टैक्स एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको लोन की सूरत में मिलेगा या डेट की सूरत में मिलेगा. Number two, although preferred dividends can be passed, investors expect them to be paid and firms intend to pay the dividend if conditions permit. Thus, preferred dividends are considered to be a fixed cost. Therefore, their use, like that of debt, increases financial risk and thus the cost of equity. ठीक है, तो ऑल्दो आपके पास ये प्रोविजन तो है कि अगर आप चाहें तो आप प्रेफर्ड डिविडेंड को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि कंपनी दैट यू नो इफ द वो जो हमने डिस्कस किया कि अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं देती है तो दैट गिव्स अ वेरी नेगेटिव सिग्नल और वो कंपनी के लिए जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एज फार एज द फाइनेंशियल अफेयर्स आर कंसर्न. तो इसलिए no company likes to skip the dividend. So in a way, it is also a fixed cost. ठीक है, तो इसलिए that is the reason के preferred stock also increases financial risk the way the debt increases the financial risk. और जब financial risk बढ़ता है तो cost of common equity भी बढ़ जाता है. Okay, so that was one hybrid form of financing, that was preferred stock that we discussed. Now the second is leasing. There are three types of leasing. Leasing is basically when you are getting some asset on lease. So three ways of getting assets are sale and lease back arrangement. One, number two is operating lease, and number three is trade financial or capital lease. So let's discuss these types one by one. सेल एंड लीज बैक. सेल एंड लीज बैक में आप इस तरह समझें जैसे आपके पास एक लेट्स से लैंड है और वो आपने किसी को सेल कर दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और सेल करने के बाद वही आपने दोबारा लीज पे ले लिया. ऑब्वियसली जो आपने सेल किया वो प्राइस कम होगी, जो आप लीज पे लेंगे वो प्राइस ज़्यादा होगी. बैंक इज गोइंग टू मेक प्रॉफिट ऑन इट. तो दैट इज सेल एंड लीज बैक. So this arrangement, an arrangement whereby a firm sells land, buildings, or equipment and simultaneously leases the property back for a specified period under specific terms. That is sale and lease back. Operating lease is short-term lease. You can take the example of rent a car. ठीक है, that is an example of operating lease. कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपने एक एसेट लीज पे लिया है, आपकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, यू विल रिटर्न द एसेट एंड योर पेमेंट्स विल स्टॉप. So a lease under which the lessor maintains and finances the property, also called a service lease. Whereas financial lease is normally for a longer period of time, and at the end of the financial lease, the ownership of the asset is transferred to the client. So that is financial lease. A lease that does not provide for maintenance services, is not cancelable, and is fully amortized over its life, also called a capital lease. So these are the three different types of leases. लीजिंग इज ऑफन कॉल्ड ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी. ठीक है, किस तरह से ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी है? हियर इज एन एग्जांपल. दिस इज अ कंपनी, दीज आर द टू फर्म्स, फर्म बी एंड एल, और ये उनकी बैलेंस शीट है. करंट एसेट $50, फिक्स्ड एसेट $50 एंड टोटल एसेट्स आर 100. जबकि $50 डेट एंड $50 equity, so total dollar is 100. So both the companies have a debt ratio of 50%. ठीक है, फर्म बी एंड एल. अब फर्म बी जो है वो क्या करती है कि वो $100 बोरो करती है और उससे एसेट्स, फिक्स एसेट्स एक्वायर करती है. सो फर्म बी बोरोज एंड बायस. तो क्या हुआ कि $100 बोरो किए तो उनका डेट 50 से बढ़ के 150 हो गया, एंड दे परचेज विद दैट $100 दे परचेज एसेट्स. सो प्रीवियसली दे हैड $50 ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब $100 इसमें ऐड हो गया तो 150 के आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए. ठीक है, तो बोरो एंड बाय में आप देखेंगे बोरो एंड बाय इज अफेक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट. बोरोइंग इज अफेक्टिंग योर डेट एंड बाइंग इज अफेक्टिंग योर फिक्स्ड एसेट्स. अच्छा, फर्म एल जो है उसने बजाय ये काम करने के उसने वो $100 के एसेट्स लीज पे ले लिए. अब जब उसने लीज पे लिए हैं
तो ना वो आपके डेट को अफेक्ट कर रहे हैं, ना वो आपके फिक्स्ड एसेट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑल्दो इट इज योर लाइबिलिटी बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये आप दोनों फर्म्स के कंपैरिजन से देख सकते हैं कि किस तरीके से लीज जो है वो आपकी बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करती है, वेयर एज जब आप बोरो करते हैं, बाय करते हैं एसेट्स, तो वो आपके बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है। अच्छा जी, अब हम एक एनालिसिस करना चाहते हैं, या लेट्स सी एक कोई भी फर्म है उसको एट टाइम्स दे हैव दैट फर्म हैज टू कंडक्ट दिस एनालिसिस कि जी कोई एसेट है, तो द फर्म इज इन अ सिचुएशन वेयर दे आर कंसिडरिंग वेदर टू परचेज दैट एसेट और वेदर टू लीज दैट एसेट। ठीक है, तो अगर वो परचेज करेंगे तो जाहिर है दे हैव टू बोरो, सो लीज वर्सेस बोरो एंड बाय। अच्छा, ये अब सिनेरियो आप देख लें कि इसमें कंपनी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग न्यू कंप्यूटर्स, द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स इज 1.2 मिलियन, और दिस कंप्यूटर इज 3 ईयर मैकर्स क्लास लाइफ, 4 ईयर इकोनॉमिक लाइफ। अच्छा, ये जो मैकर्स क्लास है, दैट इज द कैटेगरी ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर फॉलो की जाती है कि अगर 3 इयर्स मैकर क्लास है तो उसकी रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर डिफाइंड, तो वो इसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, डेप्रिसिएशन की जाएगी, 4 ईयर में ये डेप्रिसिएट हो जाएगा। इस पे टैक्स रेट इज 40% और कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। मेंटेनेंस ऑफ 25,000 पर ईयर पेएबल एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो इस पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वो भी कंपनी को बेयर करना पड़ेगी। एंड रेजिडुअल वैल्यू इन ईयर 4 विल बी 125,000। तो अगर कंपनी 4 इयर्स के यूजेज के बाद 1.2 मिलियन के कंप्यूटर्स लिए, 4 ईयर उन्होंने यूज किया, 4 ईयर के एंड पे अगर वो उसको बेचना चाहते हैं तो द रेजिडुअल वैल्यू इज $125,000। अच्छा, इफ द कंपनी वांट टू लीज इट, देन 4 ईयर लीज इंक्लूड्स मेंटेनेंस। जो वो लीज करवाएंगे तो मेंटेनेंस उसमें बिल्ट इन है। लीज पेमेंट इज 340,000 पर ईयर पेबल एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो ये आपके पास सारा डाटा है। अब इसकी बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ बोरो एंड बाय को कैलकुलेट करेंगे एंड कॉस्ट ऑफ लीज को कैलकुलेट करेंगे, एंड देन वी कैन डिसाइड विच वन इज मोर बेनिफिशियल, या जिसमें आपकी कॉस्ट कम आ रही है, विच वन ऑफ दैट ऑप्शन कैन बी अडॉप्टेड। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। 1.2 मिलियन के एसेट्स हैं जिनको 4 ईयर में डेप्रिसिएट करना है। मैकर्स रेट जो है वो दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। तो 33% ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर, 45% डेप्रिसिएशन इन द सेकेंड ईयर, 15% डेप्रिसिएशन इन द थर्ड ईयर, एंड 7% डेप्रिसिएशन इन द फोर्थ ईयर। तो अब आप कैलकुलेट कर लें, 1.2 मिलियन का 33% डेप्रिसिएशन आ गया, तो ये आपकी अमाउंट उसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। बुक वैल्यू टू 1.2 मिलियन इज माइनस दिस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज योर एंड ऑफ ईयर बुक वैल्यू। अच्छा, फिर 45% नेक्स्ट ईयर में आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, तो वो 540,000 आ जाएगा, और उसके जो है वो बुक वैल्यू 804,000 में से 540,000 माइनस किया तो आपके पास बुक वैल्यू आ गई। ओके, सो इस तरीके से ये उन्होंने डेप्रिसिएशन आपको एक चार्ट बना के दिखा दिया कि 4 ईयर में द फुल एसेट्स 100% डेप्रिसिएशन विल बी देयर। ठीक है, तो आपके पास ये 1.2 मिलियन की जो डेप्रिसिएशन है दैट इज डिवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। डेप्रिसिएशन आ गया। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब हम लीज करना चाह रहे हैं, तो विच डिस्काउंट रेट कैश फ्लो शुड बी डिस्काउंटेड। Now, since cash flows in a lease analysis are evaluated on an after-tax payment, we should use the after-tax cost of borrowing. So, although the cost of debt is 10%, लेकिन tax rate is 40%. तो अगर हम after-tax rate consider करें, 10% 1 minus t means this is the after-tax cost of borrowing, या uh, cost of debt, after-tax cost of debt 10% 1 minus t, so t is 40%, 1 minus t will be so this
विल बी 6%। आफ्टर टैक्स जो है आपका कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 6% बन रहा है, 40% इसमें से माइनस हो गया, ठीक है जी। तो दैट विल बी यूजिंग फॉर द कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। ओके जी, यहाँ पे अब हमने इसकी कॉस्ट ऑफ ओनिंग का जो है वो सारा चार्ट बना दिया। सबसे पहले चीज आ गई, अगर आप यहाँ पे देखें, ये -1.2 मिलियन मीन्स दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये हमने एसेट परचेज किया जिसमें 1.2 मिलियन हमसे चले गए। ये मिलियंस हैं तो हमने उसको मिलियंस के 3 zeros, ये सारी वैल्यूज आप ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर इन मिलियंस, ठीक है। तो 1.2 मिलियन आ गया। अब डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग, डेप्रिसिएशन के ऊपर हमें जो टैक्स की सेविंग आ रही है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो वो हमने वहाँ उस चार्ट से कैलकुलेट करनी है जो हमने पहले डेप्रिसिएशन का चार्ट कैलकुलेट किया था। दिस इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इस 396,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर हमें जो है वो 40%, यानी इसका 60% आप आफ्टर टैक्स ले लेंगे ना। तो ये हमने यहाँ पे ये आफ्टर टैक्स वैल्यूज हमने यहाँ पे ली हैं। यानी डेप्रिसिएशन के अंदर में जो टैक्स की सेविंग्स आ रही हैं वो हमने यहाँ पे ले ली। अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 थी मेंटेनेंस कॉस्ट, लेकिन हमने इसकी कैलकुलेशन जरा आप यहाँ पे देख लें कि डेप्रिसिएशन को हमने किस तरह से लिया। डेप्रिसिएशन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, सो इट प्रोड्यूसेस अ टैक्स सेविंग ऑफ टी टाइम्स डेप्रिसिएशन। तो ईयर वन में 396,000 था, उसका 40% हमने लिया, वो हमें डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग आ गया, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है उसको आपने 40% से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग आ जाएगा। अच्छा, दूसरा 25,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट थी, लेकिन ये भी टैक्स डिडक्टेबल है। तो 25 आफ्टर टैक्स 25 डॉलर 25 जो थाउजेंड है दैट विल बी 15,000, इसलिए हमने यहाँ पे 15,000 लिया। और तीसरी चीज हमारे पास सेल्वेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये दो चीजें समझ आ गई, डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग कैसे आई और मेंटेनेंस आफ्टर टैक्स कैसे आई। तीसरी चीज रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर टैक्स। तो रेजिडुअल वैल्यू जो हमें मिल रही थी वो, इफ यू रिमेम्बर रिकॉल, रेजिडुअल वैल्यू जो थी वो 120,000 थी, जो हमने डाटा से पहले देखा था। रेजिडुअल वैल्यू 125,000 थी ना। तो 125,000 एट ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर 4 हमें ये मिलेगी। तो ये 125,000 एट द एंड ऑफ ईयर 4 मिल रहा है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, पी वी इज इक्वल टू एफ वी 1 + i रेज टू पावर n। तो वो हमारे पास 75 आ गई, $75 आ गए, ठीक है जी। ये हमारी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, ये दो वैल्यूज जो है माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएंगी, यानी -12, 15 ये हमारी कॉस्ट आ गई। और डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग पॉजिटिव है और मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस है, तो इनको, इनका डिफरेंस यहाँ पे आ गया। अब जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, दिस इज नेगेटिव एंड ऑल अदर वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ ओनिंग आ जाएगा, विच इज 766.948। ठीक है, सेवन, यानी अगर हम कॉस्ट, अगर हम बोरो करें और परचेज करें तो हमें इतनी कॉस्ट आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी कॉस्ट इतनी बन रही है 766, कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉस्ट ऑफ लीजिंग। कॉस्ट ऑफ ओनिंग के तो हमने डिस्कस कर लिया, कॉस्ट ऑफ लीजिंग की बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लीजिंग में एक ही पेमेंट है जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, लीज पेमेंट में मेंटेनेंस भी शामिल है, तो वो हमारे पास थी, इट वाज एक्चुअली 340,000, लेकिन चूंकि ये टैक्स डिडक्टेबल है तो आफ्टर टैक्स 340,000 क्या आ जाएगा, 204 आ जाएगा। तो ये 204 एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वो 749.249 आता है। 6% यूज करना है हमने, आफ्टर टैक्स रेट लेना है। अगर आप ये, इट इज हैपनिंग एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, तो ये क्या बन गया, और सेम पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर एन्युटी बन गया। और क्योंकि ये पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो एन्युटी ड्यू बन गया। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर एन्युटी ड्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर annuity due. Present value of annuity due is equal to PMT, which is 204, 1 minus 1 divided by 1 plus I raised to the power n divided by I, 1 plus I.
अब इसमें आई जो है वो 6% है, एन जो है 4 है। तो बस ये अब आप इसमें जब वैल्यूज पुट इन कर दें, कैलकुलेट करें, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास वैल्यू आ रही है दैट इज दिस 749.249। तो हमने कॉस्ट ऑफ लीजिंग भी कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग। नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ ओनिंग, जो कि ये आई थी, माइनस प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ लीजिंग, जो अभी हमने कैलकुलेट की। दोनों का डिफरेंस 17.654। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें लीजिंग में कॉस्ट कम आ रही है और बोरोइंग के अंदर, परचेजिंग के अंदर कॉस्ट ज्यादा आ रही है। दैट इज व्हाई वी यूज द टर्म नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, कि हमें लीज की सूरत में इतनी सेविंग ज्यादा हो रही है। सो इट मींस दिस इज द लीजिंग इज मोर बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। व्हाट इफ देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द कंप्यूटर्स रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था कि जी रेजिडुअल वैल्यू 250,000 थी। Sorry, residual value could range from 0 to 250,000 and has an expected value of 125,000। तो ये एक estimated value थी हमारी residual value। अगर इसमें uncertainty हो, to account for the risk introduced by an uncertain residual value, a higher discount rate should be used to discount the residual value। ठीक है, अगर आपकी uncertainty है, श्योर नहीं है कि हम कितना रेजिडुअल वैल्यू होगी, तो फिर आप रेजिडुअल वैल्यू की कैलकुलेशन के अंदर अपना डिस्काउंट रेट जो है वो ज्यादा हायर भी यूज कर सकते हैं टू cater for that uncertainty। अगर ऐसा होगा तो द कॉस्ट ऑफ ओनिंग वुड बी हायर एंड लीजिंग बिकम्स इवन मोर अट्रैक्टिव। ओके, व्हाट इफ if a cancellation clause were included in the lease, how would this affect the riskiness of the lease? A cancellation clause lowers the risk of the lease to the lessor. However, it increases the risk to the lessor। ठीक है, कैंसिलेशन कॉस्ट जो है वो लेसी मींस क्लाइंट जिसने वो एसेट लीज पे लिया उसको सूट करती है, एज कंपेयर टू द वन पर्सन। लेसर वो है जिसने वो एसेट अपना लीज पे दिया है। तो लेसर के लिहाज से वो ज्यादा रिस्क है अगर उसके अंदर कैंसिलेशन क्लॉज भी पाई जाती है। Okay, so here we conclude our part one of the chapter on hybrid financing. So in this part one, we discussed only two instruments. One was preferred stock and the other was leasing. So we'll be back with the part two of this lecture. Thank you very much.